Good morning, Standard 9th. I welcome you all to the English tutorial. Today we are going to read the chapter number 5 from the book Moments, The Happy Prince. And the writer of the book is Oscar Wilde. Let me tell you something about the author. Born on October 16, 1854 in Dublin. Author, playwright and poet. Oscar Wilde was a popular literary figure in late Victorian England, known for his brilliant wit. He was born on 16th October in Dublin, and he was an author, he was a playwright, and he was a poet. Fine. Now let me give you a short introduction of the chapter. In this, we will read about a happy prince. This prince was happy when he was alive, but after his death, his statue was placed on the high raised point in a city, and from there he was able to see the suffering and miseries of the people, and he was no more happy. Then there came a swallow bird, and the story moves on. Then the prince requested swallow bird to help him so that he can help the poor people, those who are suffering a lot. He requested that swallow bird, and let us find out in the chapter what happened then. Let us start reading the chapter. High above the city on a tall column stood the statue of a happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had 2 bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. कहते हैं कि हाई अबव द सिटी में कोई एक रेस्ड पॉइंट पे एक टॉल कॉलम में एक स्टैचू प्लेस था, एंड वो स्टैचू किसका था? हैप्पी प्रिंस का. गिल्डेड मीन्स कवर्ड विद समथिंग, और उसका जो स्टैचू था इट वॉज कवर्ड विद गोल्ड, इट वॉज गोल्ड प्लेटेड, एंड फॉर हिज आईज इट वॉज यूज्ड sapphires. Sapphires are blue bright stones. And उनके जो स्वॉर्ड का हिल्ट था, हिल्ट क्या होता है? जहाँ से हम स्वॉर्ड को पकड़ते हैं, हैंडल. यू कैन सी अ रेड रूबी देयर, और स्वॉर्ड के हैंडल में एक रेड कलर की रूबी लगी थी, यानी कि दैट स्टैचू वॉज डेकोरेटेड. See how beautiful the statue would look. एक तो वो completely gold से बना था, and then beautiful sapphires. Sapphires are very bright and shiny stones, and ruby in his sword. One day there flew over the city a little swallow. Now what are swallows? Swallow are a migratory bird. You know ना, birds migrate. जब भी एक particular area, एक region का जो वेदर है वो बड़ा हार्श हो जाता है, तो बर्ड्स डू माइग्रेशन. दे मूव टू अ प्लेस विच इज़ सुटेबल फॉर देम टू लिव इन, इजंट इट? तो एक स्वेलो आती है वहाँ पे. हिज फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर, बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. तो वो कहता है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी इजिप्ट जा चुके थे, एंड दैट पर्टिकुलर स्वेलो, दैट लिटिल बर्ड वॉज लेफ्ट बिहाइंड. And now that bird has also decided to go to the Egypt. And all day long he flew, and at night he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. तो फिर वो सारा दिन उड़ने के बाद उस सिटी में रात को अपना टाइम स्पेंड करने के लिए रुकती है. Now he is making a humor. वो कहती है कि मैं कहाँ रुकूँ, मैं कहाँ, where shall I put up, मतलब where should I stay. और फिर वो कहती है कि शायद इस सिटी ने मेरे रुकने के लिए प्रिपरेशंस की होंगी, इंतज़ाम किया होगा. He is like adding humor here. Then he saw the statue on a tall column. I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around, and he prepared to go to sleep. फिर वो कहती है कि ओके. तभी वो एक टॉल कॉलम पे
कॉलम इज़ अ पिलर, टॉल पिलर पे वो देखती है कि एक प्रिंस का स्टैचू है एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी इट। उसको लगता है कि उसको एक जगह मिल गई जहाँ पे वो रेस्ट कर सकती है। और वाई शी चोज दैट प्लेस, क्योंकि वो बहुत ही एयरी था, बहुत ही फ्रेश एयर थी वहाँ पे, और वो जो स्टैचू था वो उसको ईजिली वहाँ पे क्या कर सकता था, प्रोटेक्ट कर सकता था अगर इन केस कोई भी ऐसी मिट्टी और लाइक बारिश के पानी से। एंड ऑल्सो शी वॉज दैट स्वलो, दैट बर्ड वॉज वेरी हैप्पी कि वो एक उसको गोल्डन बेडरूम मिल गया। तो वो कहता है कि चलो आई एम सो लकी दैट आई हैव गॉट अ गोल्डन बेडरूम टुडे, सी हियर आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। ओके, और अब वो सोने की तैयारी ही कर रहा था। ही वॉज रेडी टू स्लीप, prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. जैसे वो रेडी था अपने विंग को फ्लैप करके वो अपने हेड को उसके नीचे छुपाने लगा, what happened? उसके ऊपर एक बहुत बड़ी पानी की बूंद गिरती है। What a curious thing! He cried. There is not a single cloud in the sky, and the stars are quite clear and bright, and yet it is raining. तो वो बड़ा हैरान होता है। क्यूरियस थिंग मीन्स बड़ी अजीब सी बात है, स्ट्रेंज बात है कि देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। जब क्लाउड्स ही नहीं है तो बारिश कैसे होगी? एंड यू नो ना, क्लाउड्स के कारण ही बारिश होती है। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड, यू कैन सी हियर। देन अनदर ड्रॉप फेल। अभी वो सरप्राइज हो रहा था, हैरान हो रहा था, और तभी दूसरी ड्रॉप भी गिर जाती है। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. Now it made him angry कि one after another raindrops मेरे ऊपर गिर रहे हैं, and I took shelter under a statue. और अगर ये स्टैचू मुझे शेल्टर ही नहीं दे रहा, मुझे प्रोटेक्शन ही नहीं दे रहा from the rain, तो this is useless for me. And he decided, और उसने क्या डिसाइड किया कि he will fly from here and take a shelter in a good chimney. I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw. What did he see? Okay, तो अब क्या होता है कि वो उसने पूरा डिसाइड कर लिया कि दिस स्टैचू इज़ यूजलेस फॉर मी, आई नीड टू फ्लाई अवे, क्योंकि मुझे रेन से प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा, एंड ही विल बी डिस्टर्ब होल नाइट। सो जैसे ही वो उड़ने लगता है तो उसके ऊपर तीसरी बूंद गिरती है, थर्ड ड्रॉप फेल, सी। और फिर वो ऊपर देखता है, और वो क्या देखता है? लेट अस रीड फर्दर। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। उसकी जो आँखें थी वो पूरी तरह से भीगी हुई थी, भरी हुई थी आंसुओं से, टीयर्स से, और जो टीयर्स थे उसके गोल्डन चीक से गिर रहे थे। इट वॉज नॉट रेनिंग, देन इट रियलाइज दैट इट इज़ नॉट रेनिंग। ये गोल्डन हैप्पी प्रिंस की चीक से आंसू गिर रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वलो वॉज फिल्ड विद पिटी। और वो हैप्पी प्रिंस, सिंस इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड एंड इट वॉज लाइक ब्राइट मून लाइट, इट वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था, जिसके कारण स्वलो को उसके ऊपर बहुत दया आती है। ही वॉज फिल्ड विद पिटी। पिटी मीन्स दया, पिटी मीन्स दया। फाइन, हु आर यू? ही सेड, आई एम द हैप्पी प्रिंस। तो स्वलो उसको पूछता है कि तुम कौन हो? तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि आई एम द हैप्पी प्रिंस। नेचुरली स्वलो विल आस्क यू, इफ़ यू आर हैप्पी प्रिंस, तो तुम रो क्यों रहे हो? Yes, why are you weeping then? asked the swallow. You have quite drenched me. और फिर उसको गुस्से से बोलता है कि तुमने मुझे भिगो दिया। Drenched means to soak with water, भिगा देना। When I was alive and had a human heart, the prince started telling him, जब मैं जिंदा था और मेरे पास ह्यूमन हार्ट था, दिल धड़कते हैं ना, मतलब उसका दिल धड़कता था। Answered the statue,
I did not know what tears were, for I lived in a palace where sorrows is not allowed to enter. वो कहता है कि मैं तब पैलेस में रहता था, और जब मैं पैलेस में रहता था वहाँ पे कोई भी सॉरो, कोई भी दुख, किसी भी तरह की मिजरी अंदर ही नहीं आ सकती थी. क्यों नहीं आती थी? क्योंकि जो मेरे कॉर्टियर्स थे वो मुझे हमेशा हर चीज़ प्रोवाइड करते थे. एंड फॉर दैट माई कॉर्टियर्स कॉल मी द हैप्पी प्रिंस, एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज. और वो कहता है मैं सच में खुश भी था. हैप्पी इंडीड आई वॉज. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. तो वो कहता है कि मैं खुशी खुशी अपनी सारी ज़िंदगी बिताई और मैं फिर मर गया. एंड नाउ ही सेज दैट व्हेन ही इज़ डेड, एंड नाउ व्हेन आई एम डेड, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, see what a contrast. जब उसका दिल धड़कता था तब उसके पास कोई भी सॉरो मिजरी नहीं थी, उसके पास रोने के लिए कोई रीज़न ही नहीं था, क्योंकि ही वॉज वेरी हैप्पी. एंड नाउ ही इज़ नो मोर अलाइव. उसका जो दिल है, उसका जो हार्ट है, इट इज़ मेड अप ऑफ लेड, यानी कि मेटल का है, वो धड़कता नहीं है, लेकिन स्टिल वो रो रहा है. और वो क्यों रो रहा है? क्योंकि वो इस सिटी की अगलीनेस, इस सिटी की मिजरीज को देख रहा है, लोगों की सफरिंग्स को देख रहा है. एंड ही रियली वॉन्टेड टू हेल्प, बट ही कुड नॉट डू दैट. वाई ही कुड नॉट डू दैट? क्योंकि वो बंधा हुआ है ना, क्योंकि ही इज़ अ स्टैचू, ही इज़ नो मोर अ ह्यूमन फिगर. एंड उसका जो स्टैचू है वो भी इट इज़ टाइड अप. ओके, वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड? क्योंकि वो जो स्वेलो है उसको फिर से ह्यूमर आता है. ही इज़ अ ह्यूमरस ना, उसने पहले भी तो बोला था, शायद प्रिपरेशंस करी हैं सिटी ने, ये वो. वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड? सेड द swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. वो अपने आप को ही बोलता है कि क्या ये जो प्रिंस है ये गोल्ड का नहीं है? मैंने तो सोचा था ये गोल्ड का है. लेकिन वो फिर भी, मतलब ही वॉज ह्यूमरस बट ही वॉज पोलाइट एट द सेम टाइम. वो बिल्कुल भी पर्सनल कमेंट उस हैप्पी प्रिंस को नहीं करना चाहता. सो ही टॉक टू हिमसेल्फ. देन हैप्पी प्रिंस बोलता है, फार अवे continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red hands all pricked by needle, for she is a seamstress. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. तो वो कहता है फार अवे, बहुत दूर मुझे एक छोटा सा घर दिख रहा है जो कि बहुत पुअर हाउस है, और मुझे दिख रहा है. उसका क्यों देख सकता हूँ मैं उस घर के अंदर? क्योंकि एक विंडो ओपन है. वन विंडो इज़ ओपन, सी विंडो इज़ ओपन. और वो क्या देख रहा है? एक लेडी, वो कहाँ पे? टेबल के पास बैठी है. एंड ही इज़ डूइंग एम्ब्रॉयडरी. उसका जो फेस है वो बहुत ही थिन है एंड वॉन है, मतलब शी इज़ नॉट लुकिंग हेल्दी, और बहुत थकी हुई लग रही है. और उसके हाथ जो है वो बहुत कोर्स हैं, छिले हुए हैं, दर्द से भरे हुए हैं और प्रिक्ड हैं. क्यों? क्योंकि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है और वो एक सीमस्ट्रेस है. और वो क्या एम्ब्रॉयडरी कर रही है? क्वींस की मेड, क्वीन की मेड, हेड मेड है जो हमेशा उसके साथ रहती है. और नेक्स्ट डे कोर्ट बॉल में, कोई नेक्स्ट कोर्ट बॉल में उसने वो ड्रेस डालनी है. इन अ बेड in the corner of the room her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him. I'm sorry, his mother has nothing to give him. Where it is, he's asking for orange. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. तो अब वो एक तो सफ़र कर रहा है, उसको बुखार है, और उसकी मम्मा के पास उसको कुछ भी खाने देने के लिए भी नहीं है, और उस बॉय को इस समय ऑरेंजेस खाने का दिल कर रहा है, बट शी इज़ नॉट एबल टू गिव हर, शी हैज़ ओनली द रिवर वाटर. तो
उसकी सफरिंग को बता के स्वलो रिक्वेस्ट करता है, स्वलो स्वलो लिटिल स्वलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट? माई फीट आर फास्टन्ड टू दिस पेडस्टल एंड आई कैनॉट मूव। तो वो उसको कहता है कि तुम क्या उसको हेल्प नहीं करोगे? तुम मेरे इस स्वॉर्ड के हिल्ट यानी कि स्वॉर्ड के हैंडल पे जो रूबी लगी है वो निकाल के उसको नहीं दे के आओगे? इफ़ यू विल गिव हिम, शी विल बी वेरी लाइक thankful to us, she will be very like she can help and get some medicine and food for his son. It will be very helpful for her. और मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्यों? क्योंकि जो मेरे पैर हैं वो यहाँ बंधे पड़े हैं और मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता। ओके, सीमस्ट्रेस कौन होती है? जो अपनी लिविंग को अर्न करती हैं बाय स्यूइंग, कुछ स्टिच करके जो अपनी लिविंग को अर्न करती हैं। ओके, let us move to next page. I am waited for in Egypt, said the swallow. वो कह रहे कि मेरे फ्रेंड्स मेरी वेट कर रहे हैं। And my friends are flying up and down the Nile and talking to large lotus flowers. I told you ना, नाइल रिवर वो वहीं पे ही है अफ्रीका में, है ना। तो वो कहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे मज़े कर रहे हैं, लोटस फ्लावर्स के साथ प्ले कर रहे हैं, एंड आई वॉन्ट टू गो देयर and I can't help you. The prince asked the swallow to stay with him for one night. So he requested, he pleaded कि प्लीज़ तुम एक रात मेरे साथ रुक जाओ और be my messenger, तुम मेरे मैसेंजर बन जाओ। प्लीज़ उस बॉय को जाके, उस ओल्ड लेडी को जाके हेल्प करो, सो दैट लेडी कैन बाय मेडिसिन एंड फूड फॉर हिज सन। देखो वो बच्चा कितना ही प्यासा है और उसकी मम्मा उतनी ही उदास है। I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. तो वो स्वलो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सी, आई डोंट थिंक, आई एम सॉरी, ही सेज आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, और मुझे इजिप्ट जाना है। सो आई कैनॉट स्टे हियर एंड हेल्प यू आउट एंड हेल्प दैट ओल्ड लेडी एंड हिज सन। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड एंड द लिटिल स्वलो वॉज सॉरी। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. तो तब वो हैप्पी प्रिंस बहुत सैड हो जाता है जब वो स्वलो उसको मना करती है, तो वो बहुत उदास हो जाता है। तो स्वलो जब उस हैप्पी प्रिंस को देखती है, शी डिड नॉट लाइक इट। तो कहती है इट इज़ वेरी कोल्ड, यहाँ पे बहुत ठंड है, चलो मैं लेकिन फिर भी आप तुम्हारे साथ एक रात रुक जाती हूँ। थैंक यू लिटिल स्वलो, सेड द प्रिंस. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. मतलब वो टाउन में, roofs of the town मतलब, see it is written roofs of the town, जो घरों की छतों से बहुत सारे घरों को क्रॉस करते हुए वो उड़ता चला जाता है. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. फिर वो कहता है कि वो एक चर्च को भी क्रॉस करता है. कैथेड्रल टावर इज़ अ चर्च, और उस चर्च के ऊपर क्या कार्व्ड है, क्या चीज़ बनी हुई है, वाइट मार्बल से एंजल्स बनी हुई हैं. He passed by the palace and heard the sounds of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. और फिर वो पैलेस के ऊपर से भी पास करता है तो देखता है कि एक ब्यूटीफुल गर्ल जो है वो आवाज़ सुनता है, डांसिंग एंड ऑल, हैविंग फन. और फिर वो देखता है कि एक गर्ल बाहर आती है बालकनी में अपने लवर के साथ. और फिर वो क्या बोलती है, I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. तो फिर since she is happy, she is not aware of the sufferings of that poor seamstress. तो वो कमेंट करती है कि मेरा तो I don't know कि वो seamstress जो है वो मेरी एम्ब्रॉयडरी करके ड्रेस वापस देगी कि नहीं जो मुझे स्टेट बॉल में डालनी है, and I am desperately waiting for it. और वो कमेंट भी करती है कि seamstresses are very lazy. Seamstresses are very lazy. Okay. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. Lantern वो जो जिससे लाइट जगती थी पहले टाइम में, वो लाइट लिट करते थे. हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप. मास्ट क्या होते हैं, वो जो आपने ऐसी शिप्स देखी होंगी जिसके ऊपर ऐसे फ्लैग्स होते हैं और फिर वो सेलिंग में हेल्प करते हैं शिप को, है ना. तो यहाँ पे एक लालटेन टंगी हुई थी. ओके.
एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, और फिर वो फ्लाई करता हुआ घरों को पीछे छोड़ता हुआ पैलेस को, एंड देन ही सॉ अ चर्च एंड देन ही क्रॉस द रिवर ऑल्सो. उसने क्या देखा, वो उस घर में पहुंच जाता है जहां वो लिटिल रूबी देने आया था. द बॉय वॉज टोजिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड. जो बच्चा था ना वो बहुत ही परेशान था. वो इतना ज़्यादा इधर उधर लेफ़्ट राइट मूव कर रहा था. टोजिंग इज़ टर्निंग लेफ़्ट और राइट. जब आप परेशान होते हो, जब आप बीमार होते हो, यू फील अनईजी एंड यू टोज. एंड द मदर हैड फॉलन asleep. शी वॉज सो टायर्ड. और लेकिन उसकी मम्मा, क्योंकि वो हेल्पलेस थी एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड, वो वहीं टेबल पे सो जाती हैं. इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल. और फिर वो जाके वो लेडी का वुमेन्स थिम्बल क्या होता है, जो सीमस्ट्रेसेस होती है ना, ये एक ऐसी चीज़ अपने थंब पे अपनी फिंगर्स में डालती हैं जो कि प्लास्टिक या मेटल के बने होते हैं, सो दैट जो निडल है उनकी हैंड को प्रिक ना करे. ओके, देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स. हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय. आई मस्ट बी गेटिंग बेटर. एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर. और फिर वो वहाँ पे वो रूबी रखने के बाद क्या करता है, वो उस बॉय के पास जाता है और उसको अपने विंग से फ़ैन करता है, पंख से हवा देता है. और उस बच्चे को ये लगता है कि वो ठीक हो रहा है, उसका जो बुखार है वो कम हो रहा है, और वो आराम से सो जाता है. सैंक मीन्स ड्रॉन, नींद आने लग जाती है. स्लम्बर इज स्लीप, वो सोने लगता है. Then the swallow flew back to Happy Prince and told him what he had done. फिर वो हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और उसको सारा कुछ बताता है. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. तो वो कहता है कि कितनी अजीब बात है ना, इतनी ठंड है लेकिन मुझे अब बहुत वार्म लग रहा है. आई एम नॉट फीलिंग कोल्ड. तो लेट अस सी हैप्पी प्रिंस उसको क्या जवाब देता है. That is because you have done a good action. तो हैप्पी प्रिंस उसको ये बोलता है कि तुमने एक गुड एक्शन करा है. सी, you have done a good action. And the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. और फिर क्या होता है, एक्चुअली प्रिंस उसको ये बोलता है कि तुमने एक अच्छा काम किया एंड यू आर सेटिस्फाइड एट द हार्ट, सो दिस इज़ द रीज़न यू आर फीलिंग वार्मथ इनसाइड although it is very cold. और जब भी वो swallow सोचता था ना, उसको नींद आ जाती थी, तो वो सो जाता है. So that is it for today. We will continue tomorrow. Okay.